पूरा इंडस्ट्री एक सिंपल फॉर्म लेके काम कर रहा है. Q is equals to TC square. It's one of the largest pharmaceutical companies. Now, for them to set up a factory, it could take 3 years. So our job is how can we reduce those 3 years to 1 year? One of the very prominent insurance company here, headquartered at Mumbai, had a loss of more than 300 crores. But if you really observe what ChatGPT does, something more beautiful. It is a domain expert. उसके पास दुनिया भर का डोमेन नॉलेज है. उससे रेजिग्नेशन लेटर मत लिखो. I was recently doing a project with Reserve Bank of India. One of the discussion that came up in the training program was सर ये Gen Z कैसे हैंडल करना है बताइए. We as industrial psychologists are the bridge. हम enable करते हैं employees, workforce and industry all together. We are like an accelerant. आज के इस एपिसोड में हमने बात की है अजीत विश्वकर्मा से, जो कि एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट है और जनरेटिव एआई रिसर्च साइंटिस्ट है। हमने उनसे जानने की कोशिश की है कि आज की डेट में इंडस्ट्री में क्या स्किल गैप्स है, इंडस्ट्री 4.0 के बारे में और कंपनीज किस तरह से डेटा ड्रिवन अप्रोच से अपने ग्रोथ को बढ़ा सकती है, उसके बारे में हमने उनसे सवाल किए हैं। इसके साथ साथ हमने जानने की कोशिश की है उनके एक्सपीरियंस के बारे में ड्यूरिंग हिज ट्रेनिंग फॉर आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स। सो आई होप आपको ये एपिसोड जरूर पसंद आएगा और बहुत हेल्पफुल होगा। सो एंजॉय द शो। Hi Ajit. Hi Gaurav. How is life? Excellent, Gaurav. Doing very good. Thanks so much for inviting me here. Welcome to the podcast with Cover. Thanks a lot, Gaurav. Thanks a lot. So, Ajit, who is Ajit Vishwakarma? A corporate tire, a AI enthusiast, industry psychologist, technical expert. Who is Ajit? That reminds me of a very famous dialogue from this Nawazuddin Siddiqui movie, Apnish Bhagwan Hai. Right? So, Gaurav, here I believe in the philosophy that whatever the industry requires, you should know those things. So, I'm a techie by education. By profession, I'm an industrial psychologist. And by passion, I'm a trainer. Okay. I think these three things is something that could summarize what I am currently right now. Okay. So, if I see your diagram, or so, masters from computer application from VGTA till a famous corporate trainer or an entrepreneur. So, how you see or how you explain your journey? How will you explain this journey? Gaurav, I believe something, if it is written in your destiny, it is going to happen. And me being, like you said, a very famous corporate trainer is something I believe was written in my destiny. However, I'll give you a little bit of hint how I actually reached here. Like you said, I did my post graduation from Vijay College. That means I was very good as a techie, right? So I did work for IT companies for quite a few time. So I was a project manager. Then I slowly progressed to become the chief technology officer. And I was in my last adventure, I was working for an edtech company where I saw how the training and teaching is such a wonderful job role. Then from there, I started up my own ventures. I started up within startup which was working with handicrafts in India. So I traveled a lot and I was able to gather a team of 3,000 artists. And there also I realized that we required some kind of skill development and trainings for these artists also. And then I saw, okay, then what the next can be done? So slowly we went to universities. We started training university students. Then we realized that such kind of skill development is also required for the corporates. So we started approaching the corporates. And that's when I met a lot of wonderful people. I met a lot of corporate trainers. I met a lot of psychologists. I met a lot of retired IAS officers, IPS officers who are actually doing these things. They are going to various different corporates and they are training these things. And I got the exposure of Skill India 8 years back. Today, everybody is talking about Skill India, but it actually started a decade back where some young officers and some good learned people came up with the concept that everybody needs skill development. And I was fortunate enough to meet such people. And that's when I was mentored and then I ventured into Skill India. From that kind of time till now, I have done more than 300 plus certifications. Oh,
I have done 2 advanced degrees. I am an industrial psychologist also. You did doctorate also, no? Yes. I'm also a generative AI research scientist. So there are 3 things now I focus on. Number 1 is the psychology. Okay. What is the psychology of the industry? Second thing is behavior. What is the behavior of the industry? How we can make the behavior of the employees or collectively of the industry better. And the third thing is the technology, which I'm already an expert of. So what is the latest technology and what these technologies have an impact on the industry and how we can revolutionize it. So these are the 3 things which right now we are working on. Gaurav, right now me and my team are mentoring more than 150 plus companies. Collectively, our job is to address any kind of problems that any industry is facing. Okay. Majorly, any industry is facing problems at 3 levels. Either there is a problem or a scope of improvement in leadership, either it is the management or it is the workforce. If it is leadership problem, we do leadership trainings. If it is manager problems, we do manager trainings. If it is a workforce problem, we do workforce trainings. Okay. And majorly, there is only 3 things. Either there is a problem in the process, which can be fixed. So we know a lot of processes, which we have studied all the scientific process. How do we do lag analysis? How do you find out territory management? How can we reduce loss ratios? So these are all different types of processes which is driving the industry. रैग एनालिसिस क्या होता है? सो रैग एनालिसिस में ये होता है कि मान लीजिए आपको सेल्स इंक्रीज करना है, राइट? सो सेल्स इंक्रीज करने के लिए आप किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करेंगे एंड हाउ विल यू एनालाइज इट? सो हमारे पास बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स है टू एनालाइज अ बिजनेस पैरामीटर्स. तो हम बहुत सारे की परफॉर्मेंस इंडेक्सेस को आइडेंटिफाई करते हैं एंड हाउ डू वी अपग्रेड दैम, ओके. थ्रू वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. Many more examples are there. For example, I was doing an intervention recently with Zydus. So Zydus is one of the pharmaceutical companies, one of the largest pharmaceutical companies. Now, for them to set up a factory, it would take 3 years. So our job is how can we reduce those 3 years to 1 year? So what are different types of analysis that can be done? First, we have to identify that. Once we identify those things, how do we fix it? And then we don't have a lot of time to fix it. Yes. We want to fix it as soon as possible. Yes. और पूरा इंडस्ट्री है ना एक सिंपल फॉर्मूले पे काम कर रहा है. Q is equals to TC square. Q is equal to TC square. have you heard of this formula? E is equal to MC square. E is equal to MC square. Yes. It was given by the famous scientist. I think the universe is revolving around this formula. एक फॉर्मूला मैं आज आपको देता हूँ. Yes, sir. Q is equals to TC square. Q is equal to TC square. Okay. इंडस्ट्री को क्या चाहिए? And this is for everyone. This is for young students. This is for my entrepreneurs. This is for my industry. All limits. Industry wants quality. First thing is quality. Quality चीज. अगर आप सर्विस दे रहे हो, I want quality service. If you are in a product, I want quality product. Yeah, quality चाहिए. And the quality का demand is increasing day by day. Delivery used to take 7 days, 10 days. Now it's up to 10 minutes. अभी तो मुझे सोचूंगा तो मुझे प्रोडक्ट चाहिए, right? We will get onto those things. So people are working for quality, and then it has to be done in a lesser time. yes. If you see how the shift of the industry has happened, we will see any industry which is born just 3 years back is scaled up to a level where they are challenging industry which are 100 years old. 3 साल 4 साल पुरानी कंपनी 100 साल पुरानी कंपनी को चैलेंज कर दे. सो टाइम नहीं है हमारे पास. सो टी. सेकेंड इज वी डोंट हैव लॉट ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन चाहिए इनमें. इतना ज्यादा बजट डालने के लिए किसी के पास नहीं है पैसे. एंड देन TC स्क्वायर. सो TNC कम्स ट्वाइस. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज टीम. सब पहले कंपनी 2000 लोग चलाते थे. आज वही कंपनी उतने ही लेवल पे 20 लोग चला रहे.
So the teams are in this model, and we want a high performing team. Yes. छोटी टीम बड़े काम करनी चाहिए. Third thing after this, the fourth and last thing is C for cost, for change. हमारे पास टाइम आ रहे, हमारे पास कॉस्ट आ, Cost. टाइम कम से कम चाहिए, कॉस्ट कम से कम चाहिए. Team. टीम छोटा टीम हाई परफॉर्म, छोटा टीम हाई परफॉर्मेंस. There is a logic behind all these things. Yes. If there is a last team, suppose suppose एक simple task देता हूँ मैं आपको. You have to paint this wall and you want to reduce the time. और आपने बोला मैं यहाँ 50 people deploy करता हूँ. What will happen? Chaos. of decision making गया, गया. टाइम बढ़ जाएगा. इसीलिए the demand of smaller team which are able to address a bigger problem has come into picture. Yes. और जो लास्ट सी है सर वो चेंज है. The rate of change that is happening in the industry, ये drastically और exponentially increase होगा. I'll give you a small example. रिलायंस को रिलायंस बनने के लिए 100 साल लगे. हाँ. अभी जेप्टो को जेप्टो बनने के लिए 4-5 साल लगे. बस ही. राइट. सो आप देखो चेंज कितना फास्ट हो गया है. सो वी वांट अ टीम, वी वांट एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच कैन अडैप्ट टू चेंज. बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट इवॉल्व हो रही है. नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी, इवन द प्रोसेस, माइंडसेट is evolving at a faster rate. So can my organization adapt to change? Yes or no? That is important question. That is a very important question. So Q is equal to, this is Q stands for quality. Quality, T, team, time, cost, team, change. सर ये 5 एलिमेंट के लिए पूरी दुनिया काम कर रही है, कोई सी भी इंडस्ट्री. और अगर ये फॉर्मूला आप अचीव नहीं कर पा रहे, आपका टाइम सही नहीं, आपका कॉस्ट ऑप्टिमाइज नहीं, आपकी टीम ऑप्टिमाइज नहीं, and you are not ready or you're not fully able to adapt to the change. Okay, so there is no 0 and 1, it's a range. So my industry is facing this 5 problems. तो टाइम का प्रॉब्लम आ रहा है, स्केल हो रहा है सर, बट बहुत धीरे धीरे स्टेट हो. सर कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है, सो लॉस रेशियो इज वेरी हाई. दैट आई नो लॉट ऑफ कंपनीज वर डूइंग वंडरफुल, बट देन देयर लॉस रेशियो इज वेरी हाई. बहुत बिजनेस आ रहा है, लॉस भी उतना ही आ रहा है, net profit कम हो रहा है. नेट प्रॉफिट कम हो रहा है. Bottom line. लॉस रेशियो कैसे रिड्यूस करना है? देन द टीम इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स इन द इंडस्ट्री राइट नाउ. इंडस्ट्री का मेजर प्रॉब्लम है सर टीम. हमें एक छोटी टीम चाहिए which is high performing, and that is why the entire world is now crying about skill development, skill development. So now everybody is talking about skill. हर कोई स्किल की बात कर रहा है. So आपके ऑब्जर्वेशन में ऐसा क्या है कि कॉमन स्किल गैप क्या नजर आती है आज के प्रोफेशनल्स में आके? So one of the common skill gap is problem solving ability. प्रॉब्लम सॉल्विंग ability. Problem solving ability is the one of the biggest problem. Like I said, if I give you a lot of time, you can solve anything. And नहीं है ना, but if I give you a lot of पैसा, you can build Taj Mahal again. नहीं है ना पैसा, right? Right. And टीम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि no matter how intelligent people you bring in at a room, ये लोगों की thought process मैक्स नहीं होती कोई. Everybody come up with their own ideology, their own backgrounds. So it is very, very, very difficult to make people work in a team, no matter what. So सबसे major problem is problem solving ability. इसमें critical thinking एक आदत है. Varu, here I would like to tell you what is being happening in the industry और industry को क्या चाहिए. इंडस्ट्री को टॉप डाउन अप्रोच की आदत है. मतलब द लीडरशिप विल टेल क्या करना है, मैनेजर्स HODs विल टेल क्या करना है. आई विल सिंपली गो एंड डू इट. नाउ दिस अप्रोच विल नॉट वर्क because how change is happening at a very fast rate. Now we want that lower level से the solution should come. Each department should be able to solve their own problems. अगर सेल्स डिपार्टमेंट है, उसको उसके प्रॉब्लम्स पता रहने चाहिए, कैसे आइडेंटिफाई करना है एंड कैसे सॉल्व करना है. दे शुड बी वेल इक्विप्ड. HR डिपार्टमेंट्स, इटरेशन रेट बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, किस लिए बढ़ रहा है, हाउ डू वी सॉल्व इट. दैट HR डिपार्टमेंट शुड बी वेल इक्विप्ड.
सक्सेसफुल हायरिंग्स कैसे करनी, अंडरस्टैंडिंग टॉप परफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स कैसे करना, हमारी प्रोडक्ट टीम्स है, हाउ टू क्रिएट अ नाइस प्रोडक्ट मिक्स, how do I get feedback from customers, how do we know where is my customers. So all these things, the problem and the solution should come from the bottom. So number one skill is just which is missing is जो skill gap है problem solving skill. Problem solving एक मेगा बोलो. Second मैं बोलूँगा सर communication. And when I say communication, the traditional book definition is, passing the message from one person to another person. So that even a 1-year-old kid can do beautiful. When I say communication, we are talking about, are you able to get the work done? Yes or no? One of the major problem my industry is facing is handling the Gen Zs. तब Gen Z को बोलो ये करना है, वो बोलता है नहीं करूँ. I was recently doing a project with the Central Bank, Reserve Bank of India. It was a 2 days of long intervention where all the executives were present. And one of the discussion that came up in the training program was, sir, ये Gen Z कैसे handle करना है बताइए. It is, they get demotivated very easy. We want them and we don't want. We want them because they are born in this industry, so they know the trade. They are very good with technology, and we want them. But it is very difficult to make them work. तो सर 3 चीज़ें होते हैं which is very important. There is an organization goal. Organization क्या चाहता है? There is a team goal. In the team क्या चाहता है? And then there is an individual goal. Individual क्या चाहता है? तो जो पुराने लोग हैं, जो old workers are there, so you'll see when they have joined a company, they work for the company for more than 20 years, 30 years. They believed in the organization goals. उनको ऑर्गेनाइजेशन में बीज था. उसके बाद का जो जनरेशन आया, दे वर मोर इनटू टीम्स. अगर मेरी टीम अच्छी है, मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर अच्छा है, तो दे विल स्टिक. मूवमेंट प्रोजेक्ट मैनेजर चेंज्ड, द टीम इज नॉट देयर, they would not want to work here. Now, this generation that has come is more of individual goal oriented. मैं मेरा मेरे लिए सही है या नहीं है. They don't believe into organization goals. How do we handle them? How do we align them with the vision of the company is one of the major problems. और ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन सॉल्व करता है सर. आप किसी से भी कोई भी काम करवा सकते हैं इफ़ यू नो व्हाट टू से एंड हाउ टू से. Okay. एंड देन देयर आर अदर इम्प्लीकेशंस आल्सो. लाइक अलग-अलग टाइप के लोग होते हैं. किससे क्या बात करना है, नहीं बात करना है. वो क्या मीनिंग लेगा उस चीज़ का. नाउ व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर द आरबीआई, तो उसमें एक केस स्टडी आया था. द आरबीआई हैज़ रिलीज्ड अ नोटिफिकेशन इन जनवरी 2024. Somebody saw that notification in March after 2 to 3 months, which they have forgotten also. And the interpretation that the market took What is the difference? was absolutely different, because of which the entire market crashed. तो हमें पूरा ट्रेनिंग डिज़ाइन करके बताना पड़ा कि किस चीज़ के कितने मतलब निकल सकते हैं एंड हाउ यू कैन कंट्रोल दीज थिंग्स. Okay. So problem solving, Communication. communication, and third and the major problem that my industry is facing is the data driven approach. Data driven approach. डेटा ड्रिवन अप्रोच नहीं है सर मेजर इंडस्ट्री में. आई टेल यू व्हाई. यू एंड मी आर बोर्न इन इंडस्ट्री 3, और हमने जो चीज़ें सीखी है वो इंडस्ट्री 2 की सीखी है. और आज हम आ गए इंडस्ट्री 4 में. इंडस्ट्री 4 इज स्मार्ट इंडस्ट्री. Yes. इट इज ऑल डेटा ड्रिवन. सो व्हाट डू यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्री 4? हाँ. So चलिए, फॉर योर व्यूअर्स लेट मी टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इंडस्ट्री व्हाट्स, yes. because that I think will set up the foundation for everyone. Correct. Please. सो इंडस्ट्री रिवोल्यूशन कैसे आए? पहला इंडस्ट्री रिवोल्यूशन आया when people started using simple machines. Simple machine means this pen is a machine. A simple machine is some job. Yes. So we started developing simple machines. इससे हम छोटे मोटे बेसिक काम कर पा रहे. अच्छा, ये मशीन क्यों डेवलप किया हमने? और पर्पस बिहाइंड डेवलपिंग द मशीन, Get the job done. get the job done. But job तो बिना पेन के भी we were able to do lot of things. Why do we needed the machine?
सिंपल रीजन, हमें ना कम टाइम में अच्छा क्वालिटी काम करना एंड कॉस्ट कम लगाना था, राइट? सिंपल रीजन। ये 100 साल तक चला सर। हमने बहुत सारे छोटे छोटे मशीन बना लिए, फिर हमें लगा दिस इज नॉट इनफ, वी स्टार्टेड डेवलपिंग फैक्ट्रीज। ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्रीज देंगे आप, तुम इंडियंस लोग सिंपल मशीन से काम करते हैं, हम तुमको नया इंडस्ट्री देंगे, तुम्हारे लिए रेलवेज बनाएंगे, इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, केमिकल फैक्ट्री सेटअप करेंगे, राइट? दैट वाज द विजन, राइट? यस, ब्रिटिशर्स केम अप विद न्यू इंडस्ट्री, right? And they said, look, how are we so successful? Hmm. So promise of those industries, and it had a valid point. So metallurgy, all kind of engineering, सारी इंजीनियरिंग, जितनी भी इंजीनियरिंग आज हम सुन रहे हैं, ये सब इसमें मुआ हुआ था 1800 के आसपास। 200-300 साल हो गए आज। 1853 that is India Life. बहुत पुराना, 200-300 साल लगभग हो गया है। ये 100 साल तक चला ये कहानी। अगेन फैक्ट्रीज क्यों चाहिए था? व्हाट वाज द नीड ऑफ द फैक्ट्रीज? सेम Better quality, better quality. अभी हम पहले हाथ से कपड़े बना रहे थे, नाउ वी वांट टू मेक कपड़ा विद द फैक्ट्री। अच्छे कपड़े बनेंगे, फास्ट बनेंगे, टाइम बचेगा, कॉस्ट बचेगा, और कम लोग ज्यादा काम कर पाएंगे। Yes. दैट वाज द कॉन्सेप्ट। देन थर्ड इंडस्ट्री क्या? थर्ड इंडस्ट्री आया, उन्होंने बोला यार सिर्फ फैक्ट्री से काम नहीं चले, वी वांट कंप्यूटर्स, वी वांट कंप्यूटर्स, Computers. Yes. 1991 के आसपास. कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स डिस्कवर हुआ सिर्फ। कंप्यूटर्स कुड सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन लेस टाइम, दैट वाज द बेसिस ऑफ कंप्यूटर्स। उसका पहले इंडस्ट्री मिलिट्री एप्लीकेशन था, फिर वो इंडस्ट्री एप्लीकेशन आ गया, फिर इंडिविजुअल। वर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे फ्लो होती है? टेक्नोलॉजी सबसे पहले मिलिट्री के पास होती है एंड वो उसको पूरा यूज करते, एंड नोबडी हैज नो आइडिया मिलिट्री के पास क्या क्या टेक्नोलॉजी, बस गवर्नमेंट हैज ऑल द रिसोर्सेज टू डेवलप टेक्नोलॉजी। Correct. सो वो टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, यूज करते हैं, सीक्रेट रखते हैं। जब सेम टेक्नोलॉजी किसी और कंट्री के मिलिट्री के पास भी हो जाती है तो वो बेकार हो गई। तो वो क्या करेंगे? उसको पास ऑन कर, वो इंडस्ट्री को दे दे, अब तुम चलो। इंडस्ट्री क्या करेगी? इंडस्ट्री उसको यूज करेगी खुद के लिए, बट अगर दूसरी कंपनी के पास भी सेम टेक्नोलॉजी आ गई, वो उसके लिए वेस्ट हो गया। देयर इज नो कॉम्पिटिटिव एग्रोफिट। सो वो क्या करेगा? वो हमें दे देगा, कंज्यूमर्स। दैट मीन्स जो मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हो, ये बहुत पुराना टेक्नोलॉजी, तो आप जो बोलते हो फोल्डेबल स्क्रीन नया है, ये यूज हो गया है। एक इंडिविजुअल के पास वॉट एवर टेक्नोलॉजी रीचेस, इट इज ऑलरेडी ऑब्सोलीट। Really? यस, एनी टेक्नोलॉजी दैट रीचेस ही एज अ कंज्यूमर ऑलरेडी ऑब्सोलीट है सब, दुनिया में सबके पास आ चुके हैं। इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री हैज यूज्ड इट, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री हैव यूज्ड इट। अब उन्हें कोई काम नहीं है तो अब आपको दे दिया है उस चीज सस्ते। ओके, राइट? सो दैट्स हाउ इट फ्यूज। सो माय थर्ड इंडस्ट्री स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर्स यूज कर, तो एक तो नए ब्रांच आ गए सर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग आके, कंप्यूटर साइंस, तब भागे कंप्यूटर इंजीनियरिंग कम थे, आईटी सब भागी, एंड देन फैक्ट्रीज आ गया। सो द एम्प्लॉयबिलिटी, स्केल ऑफ पीपल who are getting employed because of the factories was very huge. तो एक चैलेंज और आ गया, हाउ डू आई मैनेज दीज पीपल? तो एमबीए आ गया सर। हाँ. सो एवरीबॉडी स्टार्टेड गोइंग एमबीए 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 एमबीए। मैनेजर्स चाहिए, मैनेजर्स चाहिए। मैनेजर्स का काम क्या था? मैनेजमेंट ऑफ पीपल, राइट? मैनेज देम, मोटिवेट देम, बिकॉज स्केल हो गया, बहुत रैपिडली स्केल हो गया। अब दिस वेंट ऑन फॉर अनदर 100 years। तो अभी जो हमने यूनिवर्सिटीज में पढ़ा है, आपकी पूरी इंजीनियर, आपका पूरा मैनेजमेंट, ये 200 साल पुराना है। तो दिस इज फॉर ऑल द यंग व्यूअर्स आपके, जो बोलते हैं कि जॉब नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है, इसलिए नहीं मिल रही है सर, बिकॉज व्हाट यू नो एज अ स्किल इज 100-200 ईयर ओल्ड, एंड दैट मे और मे नॉट बी रेलेवेंट टू मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज। कुछ इंडस्ट्री में अभी भी चीजें चल रही है,
तो मिल जाएगा। तो मोस्टली सपोर्ट रोल्स इजीली मिल जाते हैं। हाँ, सपोर्ट रोल मिल जाए। सपोर्ट रोल्स इजीली मिल जाए क्योंकि ऑलरेडी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, उसको रन करने के लिए सपोर्ट रोल्स चाहिए। बट इफ यू टॉक अबाउट कि मुझे एक हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल चाहिए, हाई पेइंग रोल चाहिए, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सो बिकॉज़ इतना सारा computers we started using, we started generating a lot of data. तो पहले तो हम डिलीट कर देते थे, सिंपल स्टोरी। एंड आई एम प्रीटी श्योर आपके पास कोई सा भी मोबाइल फोन है, 1 साल के बाद स्टोरेज गया फुल फुल। तो इफ समबडी आस्क मी कि वर्ल्ड में व्हाट आर द मेजर वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, लोग बोले ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सब मैं आपको बताता हूँ वर्ल्ड की मेजर प्रॉब्लम क्या है। ई-वेस्ट? ईवीएस नहीं, वर्ल्ड की मेजर प्रॉब्लम ये है कि नाउ एवरीथिंग रन्स ऑन सर्वर्स एंड कंप्यूटर्स, करेक्ट। हर चीज सर्वर पे चलना है। आपके आधार कार्ड, इंडस्ट्री, कुछ भी बोल दो, सब सर्वर पे चल रहा है, डेटा सर्वर का सब सर्वर पे चल रहा है। वी डोंट हैव इनफ स्टोरेज ऑन इंटरनेट, वी डोंट हैव इनफ स्टोरेज टू cater to the world's need. Imagine a situation, borrow tomorrow योर व्हाट्सएप लोड हो गया, नहीं चल रहा है। आपका अमेजोन, फ्लिपकार्ट लोड हो गया, नहीं चल रहा है। आप जितने भी ऐप्स चला रहे हो, ओला, उबर, नहीं चलता है। गूगल मैप्स नहीं चल, दुनिया थम जाए। खत्म है दुनिया। दैट इज वन ऑफ द मेजर वर्ल्ड प्रॉब्लम। वी डोंट हैव इनफ स्टोरेज। उसके लिए इवन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो वी आर वर्किंग विद मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, आर डूइंग वंडरफुल जॉब्स। क्लाउड कंप्यूटिंग अब आ रहा है, बहुत ज़्यादा कैसे यूज होगा, ये डेटा सेंटर्स इंडिया में कैसे लाना है। So that is also one of the major problems that India is trying to solve right now, as a government or the country. So ये major problem, अब इतने data है, deal कर। So that was the problem of industry 3. अभी सर from last 20 years we are into industry 4. Somebody realized this data is a landmine. इसको अगर आप स्टडी करोगे तो दो चीजें पता चलती। इंफॉर्मेशन, सपोज आपका प्रोडक्ट 10 रुपए का है और अगर आपको पता चल जाए दैट बाकी लोग अपना प्रोडक्ट 9 रुपए में बेच रहे हैं या 11 रुपए में बेच, राइट। If you only have that information, you can price your product in such a way that लोग आपके पास आए, अगर आपके पास वो information है। So recently we were doing some case studies. One of the very prominent insurance company here, headquartered at Mumbai, had a loss or bad debt of more than 300 crores. 300 crores। 300 crores। मैंने आपसे इंश्योरेंस ले लिया, फिर मैंने प्रीमियम नहीं था और मैं गायब हो गया, राइट। मोबाइल नंबर है। So Abhi, what are the solutions? So this was one of the problems when we were doing the training, a data-driven approach कैसे करना है, तो that come up in the discussion. जैसे ये बताओ ये कैसे solve करेगा? तो traditional approaches आप पुलिस केस करो, तो tell me if I have to put up a case on 4,000 5,000 people, मेरा कितना energy, time, resource, recovery के कोई scope नहीं है। अरे बोल देगा मेरे पास नहीं है, मेरे मिल गया तो। So that obviously that option is not viable. So how do we catch hold of this? So data ecosystem समझने का जरूरत है। If you look in this room right now, data is everywhere, and right now my industry is driving on data. So हमने आइडेंटिफाई किया कि वो इंडिविजुअल से एसोसिएटेड डेटा क्या है, लैंड रिकॉर्ड्स। हाउ डू यू फेच देम? डिजिटलाइज्ड है, राइट। इफ आई एग्जैक्टली नो मुंबई के अंदर कितने लोग मैरिड है, कितने लोग अनमैरिड है, कितने लोगों के पास कार है, नहीं है, कितने लोगों की क्या एजुकेशन है, imagine what would be scale of my business if only I have that information. करेक्ट। And right now because सब digitalized हो गया है and there is a data ecosystem, it's possible. So industry 4 की requirement है data. हाउ टू कलेक्ट हाँ, हाउ यू कलेक्ट this data, wonderful. I'll definitely try to tell you about this also.
अभी ये डेटा ड्रिवन अप्रोच मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज आइदर दे नो बट दे हैव सेव कुछ, तो डेटा तो है भी, कहाँ से लाएंगे बैच डायरेक्ट कर, कहाँ से लाओगे डेटा? एंड दैट इज पॉसिबल बिकॉज हमें डेटा इकोसिस्टम नहीं होता है. सो डू यू नो we have Ministry of Statistics and Program Implementation. हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम है. हमारे पास पूरी की पूरी मिनिस्ट्री बनाई. ये मिनिस्ट्री करती क्या है? ये मिनिस्ट्री डेटा कलेक्ट करती है एंड उसको एनालाइज करती है. Many of you here will not know India is one of the only countries which works on open government data policy. ओपन गवर्नमेंट डेटा पॉलिसी. ओपन गवर्नमेंट डेटा पॉलिसी दुनिया की कुछ ही कंट्रीज में से एक ही कंट्री है, 2-4 कंट्रीज और हैं जो ओपन गवर्नमेंट डेटा पे बिलीव करती है. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इस कंट्री को रन करने के लिए data driven approach is there. We'll do surveys, we'll collect on the data, we'll study that data to understand what my country needs. किधर रोड्स चाहिए, किधर बिल्डिंग्स चाहिए, किधर स्कूल्स चाहिए, और फिर ये जो पूरा डेटा कलेक्ट किया जाता है, ये डेटा हम पब्लिकली सबके साथ शेयर करते हैं. Okay. Who can use this data? Number one, इंडस्ट्री. मैं तो बताया टेक्नोलॉजी का फ्लो सर. हाँ. पहले तो मिलिट्री गवर्नमेंट इनके पास ही होती है टेक्नोलॉजी, बस दे हैव द रिसोर्स ट्रिकल डाउन. एंड देन दे गिव इट टू इंडस्ट्री, क्योंकि government wants the industry to grow. For Ministry of Statistics and Program Implementation, data.gov.in, data.gov.in. सीधा सीधा कैटलॉग है सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है सीधा कैटलॉग. आप सेक्टर टाइप करो, क्या सेक्टर का डेटा चाहिए आपको, किस साल का डेटा चाहिए आपको, क्या डेटा चाहिए आपको, पेट्रोलियम डेटा चाहिए. आई कैन टेल यू इन 10 to 15 मिनट्स मुंबई में कितने लोगों के पास क्या कार है. अब आप इसको इंश्योरेंस कंपनी के पास ले जाओ, स्केलेबिलिटी 3x हमने किए. We have helped companies, mentored companies grow 3x in less than 1 quarter. Great. With the help of data. With the help of data, data-driven approach, problem solving ability. कि आपको अभी bottom up approach लाना है, data तो use करना है. And for doing all these things, there are certain important behavioral trainings that are also very important. जैसे कि communication, how to get things done, critical thinking, out of the box कैसे सोचना है आप, right? How do you manage your time and how do you prioritize yourself is also one of the biggest challenges that now everybody facing. क्योंकि अगर आप देखोगे आज हर कोई मीनिंगफुल काम कर रहा है कंपनी के अंदर, एंड दे आर प्लेइंग मल्टीपल रोल्स. मेल भी रिप्लाई कर रहा है, क्लाइंट से भी बात कर रहा है, प्रेजेंटेशन भी दे रहा है, हैंडलिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम. सो हाउ डू आई प्रायोरिटाइज माई सेल्फ हैज बिकम बिग चैलेंज. और उसकी नीड अभी आई है क्योंकि इतने सारी चीजें हम कर रहे हैं. So we have some frameworks that we use to get this thing done. तो ये सारी चीजें is what the industry require. It requires data-driven approach, problem-solving ability. It requires greater communication skills. Critical thinking चाहिए हमारे पास. और जब मैं डेटा की बात कर रहा हूँ, so डेटा कैसे लाना है, उसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा डेटा का इकोसिस्टम क्या है. ऐसे 14-15 जगह है सर. डू यू नो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ सर्विस है. Okay. So many of the companies, they spend crores and crores of rupees to conduct surveys to get the data. हमारे पास पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है जो सर्वे करता है, और उससे ज़्यादा अच्छा सर्वे आप नहीं कर सकते सर. हमारे पास एक डिपार्टमेंट है विच हैज़ गॉट ऑल द फाइनेंशियल डेटा ऑफ द एंटायर इंडिविजुअल्स इन इंडिया. हाँ, आपको डायरेक्ट डेटा नहीं मिलेगा, तो आप ये नहीं बोल सकते कि डेटा भी. अजित विश्वकर्मा के अकाउंट में कितने पैसे हैं. ये आप नहीं बता सकते, बट आप ये बता सकते हो कि मुंबई के अंदर 1 करोड़ से ऊपर कमाने वाले कितने लोग हैं, उसमें जेंडर किसका क्या है. सर ये डेटा उतना ही मीनिंगफुल है. हम्म. सो हमारे पास पूरा फाइनेंशियल डेटा अवेलेबल है, हमारे पास सब सेक्टर के सारे डेटा अवेलेबल है. आज सपोज आपके पास पैन कार्ड है, आपने फाइलिंग की, वो डेटा गवर्नमेंट के पास गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास गया,
अब इफ यू गो टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड आस्क, मुझे बताओ इधर हाई वैल्यू क्लाइंट्स कौन से हैं, नहीं बताएगा आपको, नहीं बता, बिल्कुल नहीं बताएगा। लेकिन वो एक साहब को जरूर बताएगा, वो मोदी जी को जरूर बताएगा। सो all these ministries reports to the central government. In central government, they collect this data, use it for the development of various different policies and collectively country का, और इसका कई सारा portion they put it on various different ministry websites and specific websites भी है हमारे पास। सर हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हमारे पास एक मिनिस्ट्री है जो सिर्फ मेजर इवेंट्स इन इंडिया ट्रैक करती है। सपोज मुझे यहाँ एक मेजर इवेंट करना है, क्या मुझे गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि मैं ये मेजर इवेंट कर रहा हूँ? नहीं। बताना पड़ेगा सर। ओके, बड़ा इवेंट कर रहा है, बड़ा इवेंट कर रहे हैं, हाँ, परमिशन देनी पड़ेगी। परमिशन देना पड़ेगी, बताना पड़ेगा। बताना पड़ेगा। तो मार्केटिंग टीम के लिए है हमारे पास, आप चेक करिए इवेंट्स की पूरी लिस्ट है, तो कहाँ मार्केट करना है, पूरे इंडिया में कहाँ चल रहा है, रेडी अवेलेबल है। ओके, सो ये सब डेटा कोई भी एज ए इंडिविजुअल या फिर कोई कंपनीज यूज़ कर सकती है अपने फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स के लिए या फिर काम के लिए। बिल्कुल, आप डिफाइन करिए आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, कि व्हाट डू यू वांट टू सॉल्व। ग्रेट। एंड नाउ सिंस आपने बड़ी-बड़ी मेजर कंपनीज के लिए भी काम किया है, माइक्रोसॉफ्ट, जेपी मॉर्गन, इन्फोसिस, सो ये बड़ी कंपनीज होती है। सो अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल स्किल्स, वो एक एम्प्लॉय में क्या देखती है? बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो देखते हैं इज देयर बिहेवियर। बिहेवियर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सर यू कुड बी टेक्निकली वेरी गुड, आप टेक्निकली बहुत अच्छे हो सकते, बट इफ यू डोंट फिट वेल इन द टीम इज गोइंग एब्सोल्युटली नोवेयर। इसीलिए ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, more than your resume, more than your technical skills, more than your what you have done, etc., etc., they look for certain basic qualities in you. ये आप में है या नहीं है? Are you a lively person or not? ओके, Are you a person who can think out of the box or not? आपके पास नेवर गिव अप एटीट्यूड कितना है? ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कोई भी इंडस्ट्री देखती है। सो फर्स्ट वन इज बिहेवियर, बिहेवियर, एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड। एंड देन सर देखिए, तीन चीजें हैं, हम बोलते हैं KSA, KSA। KSA। ओके, इंडस्ट्री क्या ढूंढता है? इंडस्ट्री ढूंढता है के नॉलेज, नॉलेज। कितना नॉलेज है। तो नॉलेज आप यूनिवर्सिटी से पढ़ पढ़ा करके आते, तो नॉलेज का वी हैव ए वेरी सेट पैरामीटर कि मिनिमम नॉलेज है ना, बहुत है वो। वी डोंट वांट वेरी हाईली एजुकेटेड पीपल, मिनिमम नॉलेज है गुड इनफ, बट आई वांट एस, वेरी हाई स्किल्स। हम्म, आपको पता रहना चाहिए कि ये जॉब कैसे करना है, सो यू शुड नो ऑल द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दैट आर देयर। सर Q इज इक्वल्स टू PC स्क्वायर अचीव करना इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? अगर आप टाइम कम दोगे हम्म, तो कोई भी काम की क्वालिटी इफेक्ट हो। obvious- अगर आप कॉस्ट कम दोगे तो क्वालिटी इफेक्ट होगा सर। और आप टीम कम दोगे सर तो टाइम ज्यादा लगेगा काम करने, जनरली स्पीकिंग। और आप बोल दोगे कि चेंज ला रहा हूं मैं बार बार, मैंने आधा वॉल पेंट किया एंड हाफ ऑफ द से ना नया कलर डाल, टाइम भी ज्यादा लगेगा, कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा, लोग भी ज्यादा लगेंगे। So sir, Q is equal to TC square, ideally speaking, is impossible to achieve. then, So is if 1000 years back or some years back अगर मैं बोलूं कि सुनो गौरव, एक प्लेन है, ये हवा में उड़ेगा कई हजार साल में, आप बोलते पॉसिबल नहीं है। मतलब गौरव लिसन, पत्थर पानी में डूब जाता है, बट बड़ी सी बोट है लोहे की कई टन का, वो पानी में फ्लोट करे, तो उस टाइम के लोग बोलते इम्पॉसिबल। These things are possible because of simple scientific principles. आर्किमिडीज प्रिंसिपल आ गया, पॉसिबल। ऑर्शिड प्रेशर डिफरेंस आ गया, क्लेम्स पॉसिबल। तो
इंडस्ट्री को चाहिए कि आपके पास ऐसे कितने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं जो आप जानते हो, विच यू कैन अप्लाई इन द इंडस्ट्री। Okay. So what technically and for human behavior is it? फॉर ह्यूमन बिहेवियर ऑल्सो, दोनों चीज कितने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं। सो एज एन इंटरनेशनल ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट मेरा काम यही होता है कि मैं इंडस्ट्रीज में जाकर के व्हाट इज द बेस्ट प्रोसेस, व्हाट आर द बेस्ट मॉडल्स, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स फॉर एनी डिपार्टमेंट्स आप फॉलो कर सकते हो, और उसमें हम रिसर्च करते हैं एग्जिस्टिंग मॉडल्स को, वी फर्दर रिफाइन एंड मेक इट मोर कॉन्टेक्स्ट बेस्ड। ओके, सो दैट्स वेयर वी ब्रिज द गैप। तो मिनिमम स्किल्स में जितना आपको चाहिए वो चाहिए। लास्टली एटीट्यूड, ए KSA, नॉलेज स्किल एटीट्यूड, ये तीन चीज कोई भी इंडस्ट्री ढूंढती है सर, अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल स्किल्स व्हाट्सएवर। पर टेक्निकल स्किल्स थोड़े बहुत कम चल जाएगा, Hmm. बिकॉज टुडे यू से आई एम एन टेक्निकल एक्सपर्ट ऑफ XYZ थिंग, कल एब्सोल्यूट हो जाएगा। हेलो एब्सोल्यूट। सो आई वाज अ रैंक होल्डर, बट ट्रस्ट मी 90% जो मैंने चीजें उस टाइम पे करी आज वो इंडस्ट्री में कहीं रिलेवेंट नहीं है। ओनली दोज थिंग्स आर रेलेवेंट जो टाइम टेस्टेड, द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड अदर थिंग्स। तो ये तीन चीजें इंडस्ट्री इज आस्किंग गौरव। Okay. So अगर जैसे हमने बात की एआई की, नाउ द इंडस्ट्री आर आल्सो यूजिंग एआई एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। सो अगर कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है एंड उससे अगर इन चीज़ों के लिए अप्रोच करना है, तो क्या सोच होनी चाहिए? आप किस तरह से कुछ स्टेप्स बता पाएंगे क्या करना चाहिए? गौरव, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा मंत्र बनाता हूँ। इफ यू फॉलो दिस यू कैन बी एन एक्सपर्ट ऑफ एनी टेक्नोलॉजी। इफ यू सी माई पोर्टफोलियो, हम आज के तारीख में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिस पे काम नहीं करते। तो अभी रिसेंटली वी आर डूइंग साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग फॉर इंडियन ऑयल। हमारी जितनी पेट्रोलियम कंपनीज है हम उन पे साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस कर रहे, एंड अभी रिसेंटली साइबर सिक्योरिटी मंथ भी गया। So in terms of technology, we drive all the technologies. So how are we as individuals, जिनका अभी कॉलेज खत्म हो गया, 10 साल 12 साल 15 साल हो गया, हम कैसे खुद कैसे सीखते? उसके लिए तीन चीजें चाहिए। नंबर वन, आपको चाहिए चीजें ऑब्जर्व करना आना चाहिए। ओ ऑब्जर्वेशन, OIC, ओएस, हमें चाहिए OIC, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन एंड कॉमन सेंस। ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन एंड कॉमन सेंस आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए। When you see any kind of a technology, you should be able to observe it. So लोग ChatGPT को कैसे देखते हैं? ChatGPT से हम लेटर लिखवा सकते हैं, ChatGPT से आप छोटे मोटे काम कराना, राइट? बट इफ यू really observe what ChatGPT does, is something more beautiful. It is a domain expert. उसके पास दुनिया भर का डोमेन नॉलेज है। हाँ। उससे रेजिग्नेशन लेटर मत लिखो, राइट? उससे रेजिग्नेशन लेटर लिखवाना बेकार चीज है। इट्स अ वेरी लो यूज केस। Okay. So are you able to observe it? देखना और ऑब्जर्व करना इज टू डिफरेंट थिंग्स। Okay. आपने देख लिया बट उसकी ट्रू मीनिंग को नहीं समझा। It is same. इट इज सीइंग। ऑब्जर्विंग मीन्स व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द इनर डेप्थ, इनर मीनिंग ऑफ इट, ये क्यों है, किस लिए है। तो ऑब्जर्वेशन चाहिए सर, इमेजिनेशन चाहिए। यू कैन नॉट सी एवरीथिंग, देयर आर ऑल थिंग्स दैट यू हैव टू इमेजिन कि हाँ ये एग्जिस्ट करती है। Hmm. देयर इज एन अपवर्ड फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी है, मान लो, एंड देन वर्क ऑन इट। डेटा इज देयर, इफ ओनली यू कैन इमेजिन इट। और इमेजिनेशन, सपोज आपने कोई चीज नहीं देखी है पहले से, उसको मैं आपको विजुअलाइज करने बोलूँ, इमेजिन करने बोलूँ, आप रेजिस्ट करोगे। हाँ। तो मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज आर नाउ रेजिस्टिंग लेटर इवन अप्रोच, क्योंकि विजुअलाइज नहीं हो, दिख नहीं रहा। लाइक यू सेड, डेटा कहाँ से आए? सब दुनिया में सारा डेटा है, सब डेटा अवेलेबल है। लाइफ नहीं दे रही। हाँ, आप इमेजिन नहीं कर पा रहे, आप इमेजिन करो। सो
वंस यू कैन इमेजिन थिंग्स, वंस यू कैन ऑब्जर्व थिंग्स, अब जो चाहिए सिंपल सा कॉमन सेंस। जो भी सिचुएशन आएगा, कि यस और नो डिसीजन मेकिंग है, करना है नहीं करना, ये 3 चीज़ें आप अप्लाई करिए, कोई सी भी टेक्नोलॉजी आप सीखना है सीख सकते हैं। ओके, अभी कई सारे टूल्स आ रहे हैं, आपको सपोज़ पावर बीआई सीखना है, राइट? तो आप पावर बीआई खोलो, ऑब्जर्व करो, आप देखोगे मेनू का स्ट्रक्चर खुद बोल रहा है बहुत सारी चीज़ें कि वो क्या है, क्यों है, किस लिए। सिर्फ देखने नहीं दे रही, पहला बटन ही है उस पे इम्पोर्ट, डेटा ले ले। डेटा लेना है। तो पहला चीज़ डेटा ड्रिवन अप्रोच में बोलते हैं हाउ टू कलेक्ट द डेटा। इफ यू कैन कलेक्ट, इनोवेट, डेवलप, बिल्ड, इंजीनियरिंग होती है, डेटा इंजीनियरिंग पहला स्टेप है। ओके, कि नो हाउ टू कलेक्ट द डेटा। सो आप मुझे डेटा किसी भी फॉर्मेट में दे दो, कहीं पे भी दे दो, आई कैन ब्रिंग इट टू माई लैपटॉप इन लेस देन 10 सेकंड्स। किसी भी फॉर्मेट में दे दो। आप मुझे पिक्चर फॉर्मेट में दे दो, आप मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में दे दो, तरह तरह के एसएपीस हैं, ईआरपी सिस्टम्स है, आप मुझे किसी भी फॉर्मेट में दे दो, मैं अपने सिस्टम के अंदर 10 सेकंड के अंदर अंदर ले आऊँ। और सपोज डेटा अवेलेबल नहीं है, तो आई नो हाउ टू इनोवेट इट। फिर मेरा इमेजिनेशन काम आता है। ओके, कहाँ कहाँ पे मुझे इकोसिस्टम समझने की देरी, कि कंसिडर दिस फिजिकल वर्ल्ड इज देयर, मान लीजिए ये अर्थ है, फिजिकल वर्ल्ड, राइट? इसके पैरेलली देयर इज अ डेटा वर्ल्ड। ओके, फिजिकल वर्ल्ड के पैरेलल डेटा वर्ल्ड। डेटा वर्ल्ड है, मल्टीवर्स वाली बात चल, डेटा वर्ल्ड है सर एक, ये क्रिएट किया है हमने धीरे धीरे। मतलब आप यहाँ पे फिजिकली कुछ भी देख रहे हो अर्थ पे, कुछ भी, आप एक एग्जाम, आप कुछ भी, एक आउट ऑफ योर इमेजिनेशन, पिक वन थिंग दैट यू सी ऑन दिस ग्लोब नाउ, कुछ भी आप पिक पिक करिए। समुद्र एक। समुद्र है सर, फिल्मिक्स, ओशियनोलॉजी। और shit, सो कौन सा ओशियन में क्या मिनरल्स है, कहाँ है, कितना आ रहा है, कौन सी कंपनीज है, कितना डाल दिया है, कितना निकाल दिया है, किस टाइप का इकोलॉजी है वहाँ, सर ये पूरा डेटा है हमारे पास। हम्म, और ये कलेक्ट होता रहता है रेगुलर ड्रॉ ऑफ टाइम पे। हाउ रिलायबल दिस इज? वेरी रिलायबल। आई विल नॉट से 100%, बट अगर 90-95% भी रिलायबल मिले बहुत है। मैं उससे भी सी, नॉट हैविंग समथिंग वर्सेस हैविंग समथिंग दैट इज 60% 70% रिलायबल इज अ ह्यूज थिंग। यस, ह्यूज इट। तो डेटा इनोवेट करना मुझे आना चाहिए। लास्ट कॉमन सेंस नहीं, सो ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन है, कॉमन से कॉमन से, अगर ये 3 चीज़ें हैं तो कोई भी नॉन सिंपल सा आदमी टेक्नोलॉजी समझ सकता है। कोई भी टेक्नोलॉजी समझ पा रहा। टेक्नोलॉजी में जब आते हैं, सो अगर आप सजेस्ट करना चाहिए ऐसे कोई 4 या 5 एआई टूल्स या फिर टूल्स जो हर किसी को तो आने ही चाहिए आज के। ओके, सो गौरव, यहाँ मेरा थोड़ा सा अलग थॉट प्रोसेस है। ओके, व्हाट आई हैव सीन हियर इज द इंडस्ट्री इज क्रेजी अबाउट टूल्स। हर कोई टूल्स तो आने चाहिए, टूल्स आने चाहिए बिल्कुल, बट टूल्स इज नॉट अ प्रायोरिटी। टुडे इफ यू ओपन अप योर इंस्टाग्राम, तो आपको सबसे ज़्यादा ये रील्स क्या दिखाई देते हैं? सबसे ज़्यादा रील्स ये दिखाई देते हैं, ये टूल्स है, ये टूल्स है। ये टूल्स नहीं यूज़ किया तो आपने लाइफ में कुछ यूज़ नहीं किया। करेक्ट। एंड बाय द टाइम आप उसको देख ही रहे हो, अगले दिन कुछ नया आ रहा है, नया, कुछ नया आ रहा है। So the industry works on three different things. Number one is process, which has got all the scientific principles, technology और tools. अगर आपको इन्हें रैंक करना होगा, अगर आप कैसे रैंक करोगे? 1 2 प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी है, एंड फिर हमारे पास टूल्स है। सो प्रोसेस तो पहले आना चाहिए, बिल्कुल, विदाउट टेक्नोलॉजी के साथ भी प्रोसेस था पहले, राइट? प्रोसेस विल कम फर्स्ट, देन टूल्स, टेक्नोलॉजी एंड द टूल्स आई विल। ब्रिलियंट वर्क। तो गौरव, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। सो लोग एआई एआई की बात कर रहे हैं। एआई इज नथिंग बट हाउ डू वी
यूज डेटा टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स। हमने क्लासिफाई कर लिया दुनिया में कितने टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, पॉइंट ब्लैंक। मेजर प्रॉब्लम्स आर यस और नो प्रॉब्लम्स। इसमें ये प्रोडक्ट बनाना है नहीं बनाना है, यस और नो। किस क्वांटिटी में बनाना है, दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम। प्रोडक्ट ए हैज गॉट एनी रिलेशनशिप विद प्रोडक्ट बी, दिस इज माय थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम। प्रोडक्ट ए है एंड देयर इज समथिंग, वेदर, इलेक्शंस, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है इसका, बट क्या कोई रिलेशनशिप निकल के आ रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, राइट? सो ऐसे करके वी हैव आइडेंटिफाइड ऑल द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आर देयर इन द वर्ल्ड। अब ये प्रॉब्लम को समझना और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है, दैट इज अ प्रोसेस। ये प्रोसेस पता है आपको तो आप टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। तो प्रोसेस पता है तो टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। साइंटिफिक लॉज एंड प्रिंसिपल बनना पता है आपको, सो यू कैन बिल्ड टेक्नोलॉजी टू लॉ। मशीन लर्निंग इज अ टेक्नोलॉजी, यस। राइट? चैट जीपीटी क्या है? मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग, सिंपल मशीन लर्निंग। क्या करते हैं हम? डेटा लेते हैं, हमने एक एल्गोरिथम लिखा है और वो एल्गोरिथम से इसको ट्रेन करते हैं एंड देन वी सी व्हाट इज द रिजल्ट। एक बार में रिजल्ट अच्छा मिल गया तो हम एक दूसरा डेटा लेते हैं। वी नेवर यूज द सेम डेटा, वी टेक अनदर डेटा टू टेस्ट इट, कि दूसरे डेटा से ये टेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो देखो हमने क्या किया, पहले हमें कंप्यूटर सीखना पड़ता। हाँ। अब हम बोल रहे हैं कंप्यूटर को सिखा रहे हैं। अब हम कंप्यूटर को सिखा रहे हैं। करेक्ट। यहाँ पे एनालाइज कर व्हाट कैन बी डन। सो दिस is the natural flow that everybody needs to understand, know the process, scientific laws and principles क्या है, and then master the technology. Tools हो नहीं हो कोई फर्क नहीं करता। चैट जीपीटी इज अ टूल, मशीन लर्निंग इज अ टेक्नोलॉजी। मशीन लर्निंग इज अ टेक्नोलॉजी। मशीन लर्निंग पता रहना चाहिए। इफ यू नो द मशीन लर्निंग विथ और विदाउट चैट जीपीटी ऑल्सो यू कैन डू ग्रेट डील ऑफ थिंग्स। आपको अगर मशीन लर्निंग क्या बोल रहा है, डेटा एनालिसिस क्या बोल रहा है, आप डेटा को एनालाइज करके बड़े बड़े बिजनेस बम सॉल्व कर सकते। तो अगर आपको पता है कि डेटा कौन सा डेटा होना चाहिए, क्या डेटा किस प्रॉब्लम को एड्रेस करता है, इसको कैसे एनालाइज किया जाता है, तो सर पेन एंड पेपर इज मोर देन इनफ। ओके। ओनली प्रॉब्लम दैट विल हैपन इज विद द पेन एंड पेपर टाइम और लगेगा। टूल्स आपका टाइम कम कर। टूल्स मेरा टाइम कम कर देते हैं, फटाक से मना कर, कैसे बात? फटाक से बना देगा। सो ऑब्वियसली इट इज रिड्यूसिंग लॉट ऑफ माई टाइम एंड एफर्ट। सो टूल्स आने चाहिए, बट वो भी टाइट चाहिए होते हैं। टूल्स आने चाहिए। माई ओनली सजेशन टू एवरीवन इज, स्पेसिफिकली इंडस्ट्री इज, डोंट बी टूल डिपेंडेंट। टूल डिपेंडेंट होगा तो टूल डिपेंडेंट सर आज की तारीख में मेजरली पीपल आर टूल डिपेंडेंट। सब टूल डिपेंडेंट होते जा रहे हैं and that is why beyond a level they are not able to imagine or visualize or solve a bigger thoughts, क्योंकि ये टूल्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपका हेल्प नहीं करेगा। आपको टेक्नोलॉजी, आपका प्रोसेस हेल्प करता है। सो पीपल either they are outdated, they don't know, so freshers they don't know process, पॉइंट नहीं आते हमें, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी आती है। इंडस्ट्री इज फोकसिंग ऑन दीज थिंग्स, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज इंडस्ट्री चेंज होता जा रहा है, सो इंडस्ट्री में शिफ्ट आया तो नए एम्प्लॉयज नहीं रखेंगे, हमें एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ट्रेन करना पड़ेगा, उन्हें अपडेट करना। प्लस नॉट ऑल द टीम हैज R&D डिविजन्स, क्या इनके बिहेवियर के लिए कुछ R&D करो, इनको प्रोसेस के लिए कुछ R&D करो, राइट? Usually a new CEO or new manager comes, so he brings his old experiences and try to implement it, which may or may not work. यस। So we as industrial psychologists are the bridge. Okay. हम enable करते हैं employees, workforce and industry all together. We are like an accelerant. हम इनको इनका विजन जल्दी अचीव करने के लिए भी करते हैं। ओके। By identifying
क्या प्रॉब्लम है, क्या गैप है, एंड देन हाउ डू यू ब्रिज दैट गैप बाय वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ training programs, whatsoever it is. So my request is tools use करिए, use ChatGPT as much as possible. बट अगर आपको पता ही नहीं है कि मेरे को अगर सेल्स बढ़ाने हैं मेरे कंपनी में क्यों अच्छे एम्प्लॉयज नहीं आ रहे हैं, हाउ डू आई reduce the iteration, how do I identify what type of a product mix can be done, how do I reduce the time and effort, वो प्रोसेस ही मुझे नहीं पता है, तो चैट जीपीटी लेके आप करोगे ना, कर कुछ नहीं कर, आप कुछ नहीं कर सकते, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. सो माय इंडस्ट्री नोज कि एआई बहुत इंपॉर्टेंट है, माय इंडस्ट्री नोज डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट दे वॉक इन टू देयर ऑफिस, they open up their laptop, they don't know where to use it and how to use it. They are only using it at a lower use case levels. क्या इसको बढ़ाना है, समझ लो, तो क्या करना पड़ेगा? इसको अगर समझना है तो पहले जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा ड्रिवन अप्रोच ऐड करना पड़ेगा. आपके पास प्रोसेस है सर, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको बहुत सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पता करना, उसमें देयर हैज टू बी न्यू अप्रोच दैट नीड्स टू बी एडेड. नंबर वन, एक्सपीरियंस आपके पास है बहुत बढ़िया, बट द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन कैन नेवर हैव ऑल द एक्सपीरियंस. हाँ, पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं. सो फिर हमें कोई एक मेंटोर चाहिए, या दैट्स व्हाट वी ट्राई टू डू. सो आई हैव सॉल्व्ड केस स्टडीज फॉर मोर देन 150 प्लस कंपनीज, all the departments. FMCG, we have done it. Hindustan, Unilever, we have done it. All the major FMCGs, all the major IT companies, we have done it. कैसे उनको all the kind of challenges and difficulties in their projects, how do we scale it up? Petroleum, ministries, government projects, universities. So we have done all the case studies. Now we truly have a lot of experiences, which, if not same, is similar. Okay, it's not friends, well, If not same, it is similar. okay. So I know एग्जैक्टली कोई सी भी इंडस्ट्री में आज के तारीख में क्या क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं. एट द सेम टाइम यू ऑल्सो नो व्हाट इज द पॉसिबल सोल्यूशन फॉर इट. एट द सेम टाइम यू ऑल्सो नो हाउ डू वी इम्प्लीमेंट दो सोल्यूशंस. ओके, सो ये तो हुई एआई एंड डेटा की बात. अब आते हैं, बिकॉज आई नो यू पर्सनली, सो आई जस्ट वांटेड टू, बिकॉज इफ यू कैन, because I have seen your face last 1.5 year that you were doing fantastic job. Then suddenly you got to know that आपके वेस्ट से आपका बॉडी काम नहीं करना है. And that all, and I think you were in ICU for, I guess, 4 to 5 to 6, I think 5 to 6 months. राइट. उस फेज से वापस कैसे आए? बिकॉज यहाँ तो थोड़ा कुछ हुआ तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता, बच्चे सुसाइड कर जाते. True. Yeah, ठीक है. I'll give you a hint. So, like you said, because of the COVID, I was there in IC for 4 to 6 months, and somehow luckily I survived. And obviously, even after surviving, it has a lot of effect on my body. So actually, मैं भी कुछ दिन के लिए डिप्रेशन में गया था. But then I realized that at one point of time, this is the problem, right? अभी ये प्रॉब्लम के साथ करना क्या है? So I simply did a very simple goal setting thing with me. मुझे लाइफ में क्या करना है? तो मुझे लाइफ में ये चीज़ें करनी है. तो अभी ये मैं चीज़ें कर रहा हूँ, तो इसको करने के लिए मेरे पास क्या-क्या स्ट्रेंथ्स है, मेरे पास क्या-क्या वीकनेसेस है, मेरे पास अभी क्या अपॉर्चुनिटीज़ है. तो मैंने देखा अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी. Strength is my versatile background. I'm an expert of technology. I'm an expert of behavior. And over a period of time, I've become an expert of psychology also. Oof. So I asked my father, yeah, छोटी सी story है. I went to my father and I said it. He's retired from Indian Navy. तो मैंने उनको पूछा, Dad, ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई है. And life is now, I don't know what's going to happen with the life. It's very difficult now. तो उन्होंने एक सिंपल सा वर्ड बोला. He said, so
एक ही वर्ड बोला करते हैं, सो। एंड देन मैं वापस चला गया। एंड देन आई केप्ट थिंकिंग दैट वन पर्टिकुलर वर्ड, सो। तो तो एंड देन आई सेड सो, क्वेश्चन मार्क था ना उसके बाद। सो आई सेड सो, बस इट, लाइफ डजंट स्टॉप। ठीक है, क्या करना है? सो फिर आई चेंज माई रूटीन, आई मोटिवेटेड माई सेल्फ, एंड देन दिस टाइम आई स्टार्टेड चैलेंजिंग माई सेल्फ कि अब क्या है कि जो कर रहे थे वो नहीं करे, उससे ज़्यादा बेटर करे। So we started training everybody. So अभी there are many companies and many IT companies who hire ITs and IMs. Before they actually get on board with the company, they come to us to get trained. और फिर वो वहाँ जाते हैं। तो मैं जो चीज़ें मैं लाइफ में नहीं कर पाया, वो भी अब कर रहे हैं। मैं आज वो चीज़ें कर रहा हूँ। I wanted to join armed forces. For any reason, I was not able to join. I did give my sincere efforts. Today, I'm training in Indian Armed Forces. Yes, I have seen your profile also. So वो एक्सपीरियंस क्या था आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स को ट्रेन करने में? Brilliant night. The moment I walked into the cantonment, it was a life-changing day for me. वहाँ से बट नॉर्मली जो जनरल सोसाइटी में ये इम्प्रेशन है कि भाई आर्म फोर्सेस का ऑफिसर, एक तो उनका थॉट प्रोसेस कुछ अलग होता है, तो उनका माइंडसेट चेंज कैसे करा गया? या फिर आपने जो प्लस आपको तो उनके ऊपर काम करना है, इट वाज इट वुड बी डिफिकल्ट फर्स्ट, राइट? actually नहीं, okay, because armed forces people, they believe into trade, and they are one of the most highly tradable people. They believe in mentorship. So armed forces के लैंग्वेज में बोलूँगा, उस्ताद ने बोला सही है तो सही। हाँ, उस्ताद बोल रहा है ना, so I love the story, सही, right? Yes. So that culture is already there. हाँ, only thing is that was challenging for me was they have a certain way of doing things. हाँ, उनका एक अपना सेट रूटीन, एक सेट तरीका है, एक सेट थॉट प्रोसेस है। उसमें वी वांट टू ऐड समथिंग, राइट? सो मेनी ऑफ द टाइम्स देयर कुड बी रेजिस्टेंस, उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आएगा। सो अब रेजिस्टेंस को कैसे हैंडल करेंगे? सो वी यूज एडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल्स, फिर हम विजुअलाइज कराने की कोशिश करते हैं। सो ट्रेनिंग करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये होता है टू एस्टैब्लिश व्हाई दिस ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। इफ आई एम नॉट एबल टू एस्टैब्लिश, अगर आप मेरे पास आपके 15 घंटे 20 घंटे आप मुझे दे रहे हो और आप मेरे साथ कुछ ट्रेनिंग के लिए आए, वो ट्रेनिंग से आपको क्या बेनिफिट होगा, क्यों करनी चाहिए, अगर मैं वो एस्टैब्लिश ही नहीं कर पाऊंगा, सो नो मैटर व्हाट आई से, nobody is going to believe in me. So that was one of the challenges that I was faced, to establish purpose of training. to establish purpose. And purpose हमेशा larger than life होना चाहिए। किसी भी इंसान को अगर आप पर्पस दो, जो वो बिलीव करेगा उसके, अगर ही इज रेडी टू लिसन टू इट, अगर वो पर्पस विजुअलाइज नहीं कर पा रहा है या आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। यू कैनॉट आस्क पीपल टू बी ऑनेस्ट, you cannot ask people to be hardworking, you cannot ask people to come on time. That's not how it works. आपको उन्हें एक्सपीरियंस कराने पड़ेगी ये चीज़ें। So my experience in training Indian Armed Forces, and also trained Maharashtra Police also, was absolutely wonderful, because they are highly trainable people, number one, and each one of them has their own experiences, and major of the cases सर मेरे से ज़्यादा experiences और better experiences है उनके पास। Yes. अब मेरा काम यही है कि इतने हाई परफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स विद सो मच ऑफ एक्सपीरियंस आपका गिव देम ऑन बेटर एंड अ न्यूअर पर्पस, एंड देन एवरीथिंग स्टार्ट्स ओके। तो ये कुछ चीज़ें हमने की है, इट वाज वेरी सक्सेसफुल। इनफैक्ट जनवरी में वी आर डूइंग अनदर बैच, वी हैव डन सिमिलर इंटरवेंशन फॉर महाराष्ट्र पुलिस एंड गुजरात पुलिस आल्सो। सो इवन द पुलिस आर फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस। यंग रिक्रूट्स आते हैं सर मेट्रोज में, यंग रिक्रूट्स
young people coming to metros. So हम बोलते हैं कि so and so police officers don't know how to behave with the people, right? But we don't try to understand their behavior and their psychology and what all challenges they are facing अंधेरे at their end. वो बहुत ट्राई कर रहे हैं, आपको वो चीज़ नहीं पता। सो somebody जो एक महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में से पढ़ के आया है, सोचो उसके लिए कितना डिफिकल्ट होगा टू एडजस्ट इन दिस एनवायरनमेंट जहाँ पे आप बहुत कंफर्टेबल हो, राइट? सो कैसे बात करें आपसे, वो कितना स्ट्रेस लेके चल रहा है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस, हाउ डू यू हैंडल दोस थिंग्स? Okay, so that becomes a part. Regards to the training that we are doing with armed forces is there are multiple levels actually that we are doing. There are various managerial trainings. There are a lot of technical trainings also. So Abhi, there is one thing that is happening in the armed forces is a lot of people are retiring at a very young age. So what we are doing here with the ministry is to skill them up in such a way कि जो वो corporate में आए सर, so they are very relevant. Okay. Now there are a lot of challenges being an army person. Number one is आपको जो डोमेन नॉलेज होता है दैट इज वेरी स्पेसिफिक ओनली टू द आर्म फोर्सेस। आपको गोली चलाने आती है, कॉर्बेट पे गोली चलानी थोड़ी रेस्ट, आप सुबह 7 बजे उठ के पीटी कर सकते, यहाँ पीटी नहीं होती सर। सो लॉट ऑफ पीपल नाउ आर लीविंग आर्म फोर्सेस कि मेरा ये एक लाइफ का गोल तो पूरा हो गया, ये मैंने एक लाइफ देखी। अब मैं देख रहा हूँ कि दुनिया में लोग कॉर्पोरेट में बहुत अच्छे काम में बहुत पैसा कमा रहे हैं, परसेप्शन मैं भाग जाऊंगा, मैं भी बहुत रहते हूँ। सो मेनी पीपल are leaving armed forces for many reasons, medical reasons, social reasons, or some people have just कि ठीक है, I have done, I've given my services, now I want to have a second career. So when they come, so they are not aligned with the corporates, cannot align with the industry. So we help them by developing certain mindset, giving them certain kind of trainings कि जब वो आए बाहर तो इंडस्ट्री के लिए relevant हो जाए. Because we have unfortunately seen many of the army personnel doing odd jobs after getting retired. कई बार सर ऐसा भी केस होता है कि when they join the armed forces they don't have a lot of degrees. आज सर पोस्ट ग्रेजुएशन के नीचे कोई पूछता नहीं। आर्म फोर्सेस का हमारा जवान है उसके पास नहीं है सर इतनी डिग्रीज। ट्रेड सर्टिफिकेट्स मिलते हैं विच द आर्म फोर्सेस गिव्स यू, वो बाहर आके रिलेवेंट नहीं हो पाता। सो दे हैव डोमेन एक्सपीरियंस, उनके ट्रेड सर्टिफिकेट्स होते हैं बाहर आके नहीं देता। फॉर्चुनेटली नाउ ऑफिसर्स एंड जवान्स उनको काफ़ी सारी डिग्रीज मिल रही है, बट फिर वो डिग्री भी जब आप एचआर के पास लेके जाते हो बिकॉज दैट इज नॉट अ ट्रेडिशनल एजुकेशन, क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं है सब, राइट? तो वो रिलेवेंट नहीं हो पाता है। सो दे देन गो अहेड डू सम सर्टिफिकेशन कोर्सेज, कुछ कर पाते हैं कुछ नहीं कर पाते। तो हमने जो इनिशिएटिव किया है उसमें वी स्टैंडर्डाइज एवरीथिंग एंड मेक देम रिलेवेंट टू, नॉट जस्ट रेलेवेंट, या अनलॉक देयर पोटेंशियल इन द कॉर्पोरेट्स कि सर आपके पास जो एक्सपीरियंस है उसकी कॉर्पोरेट में कहाँ क्या ज़रूरत है, और अब आप वहाँ जाओगे तो डेफिनेटली एक पूरा प्रोसेस चलेगा आपको हायर करने के लिए, तो आप कैसे रेलिवेंट पे। great. Right. That's also it was a wonderful experience and Beautiful, beautiful. Trust me, every time I go there, I feel alive. great. So हमने बात की एआई के बारे में, हमने बात की स्किल गैप के बारे में, हमने बात की डेटा के बारे में, हमने बात की आपके पर्सनल मेडिकल चैलेंज के बारे में और आपका आदमी एक्सपीरियंस में। सो आई होप बहुत सारी चीज़ें हैं आपसे सीखने के लिए एंड आई नो यू पर्सनली, सो और भी चीज़ें हैं जो हम बात कर सकते हैं, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो एंड
आई वुड लाइक टू से कि आपका जो जज्बा है कुछ करने का, हैट्स अप टू इट। थैंक यू सो मच गौरव, थैंक्स अ लॉट। सो व्हेनेवर आई मेट यू, मेरी एनर्जी बढ़ जाती। तो शायद जब मैं लास्ट टाइम आपसे पहली बार मिला था, आई थिंक कोविड के पहले, देन आफ्टर 5 इयर्स वी आर मीटिंग नाउ, बट स्टिल आई कुड सी दैट झिल इन यू कि नहीं कुछ करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। Thank you so much. It's a wonderful way being said. Thanks.